I will be picking the straight lines. It's on 10th, right? 10th November, right? Yes, ma'am. Just a second. Yes, so in the last class, I have not taken piecewise defined function. If the function is piecewise defined, then if we have to find the limit, then how we'll be finding? Okay, so let's do it. Just a second. The question is like this. Find limit x tends to 0, f of x, and limit x tends to 1, f of x. Okay, where f of x is defined like this. F of x is defined like we are having 2x plus 3 and we are having 3 in bracket x plus 1. When x is smaller or equals to 0, this is the function. When x is bigger than 0, this is the function. Okay, our function is piecewise defined function. Okay, so we'll be finding the limit. Now, in this type of scenario, we have to be careful because previously we were having only one function. So that function only we used to take. Okay, and we used to put the given x value and we used to check. If undefined used to come, then we used to think about what can be done, any simplification, any formula, any arrangement, and we were using the formula. Sometimes we were doing the simplification. But यहाँ पे problem कहाँ आ रही है कि zero. Okay, zero when x is smaller or equals to 0, तब हमारा function 2x plus 3 है. Okay, एंड जब x इज बिगर देन 0, तब हमारा फंक्शन 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 है. और लिमिट का मतलब हमें अच्छे से समझ में आता है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि जब जब x वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है तो y वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है. बट यहाँ अगर हम सेम सेम कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करें कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसे अप्रोच कर रहा है, तो हम ये पाएंगे कि हमारा y पीस वाइज डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड है. तो हमें इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे सोचने होंगे कि जब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तब y का वैल्यू क्या है. जब x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, यहाँ कहीं 0 है. जब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो y का क्या वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है. और जब x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तब हमारा एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है. तो क्या ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट होंगे? हाँ, क्योंकि हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट द एक्स इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट, एक्स इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द राइट. ध्यान से सोचो, जब x लेफ्ट 0 के लेफ्ट से आएगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करके चेक करेंगे? 2x plus 3, राइट. Yes, ma'am. एंड x जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब 0 से बड़ा, ओके, राइट साइड से अप्रोच करेगा, तब हम ये फंक्शन यूज करेंगे 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1. और यहाँ हम 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि y किसे अप्रोच कर रहा है. और ये दोनों ही केसेस में अगर हमारा सेम सेम एफ ऑफ एक्स आता है, सेम लिमिट आता है, तो ही हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. अदरवाइज हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख शो हो जाएगा. हमारा ग्राफ अगर अगर यहाँ तो 0 की बात हो रही है. ओके, when x is approaching 0 from the left, okay, maybe y is approaching at a certain number. Okay, maybe y is just coming closer to 1. Okay, okay, maybe here. And when x is approaching this 0 from the right, then maybe
y is approaching any other number, maybe 2, so then we are not able to come to one conclusion. Then we will say that limit doesn't exist. Okay, then we will say that limit doesn't exist. If the graph will look like this, later on we'll be using this concept for checking the continuity also. बट यहाँ पे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर लेफ्ट साइड वाला लिमिट एंड राइट साइड लिमिट बोथ आर नॉट सेम देन लिमिट डजंट एग्जिस्ट. Okay, and if both are same then limit exists and that is the answer. Getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अब अगर जीरो को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसे लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली इसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, we will be representing mathematically like this. Let me show you. Just a second. We'll be representing it like this. Limit x tends to 0 minus, if I'll give, that means this is from the left side, x is approaching 0. Okay, left hand limit. Okay, जब भी 0 के जस्ट हेड पे छोटा सा नेगेटिव साइन होगा, इसका मतलब है हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तब कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे. कि अगर मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो अगर x 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे? 2x+3, राइट अली एंड अलीना? Yes, ma'am. ठीक, और यहाँ पे हम लिमिट फाइंड करेंगे. तो क्या हम पुट करें? 0 माइनस पुट करें या क्या पुट करें? डोंट वरी, माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है. 0, वी आर गोइंग टू पुट 0 ओवर हियर. ओके, 2 into 0 plus 3. Our answer, our limit is 3. सिमिलरली हम ये फाइंड करेंगे कि अगर x 0 को नाउ राइट से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स 0 प्लस. ये जो प्लस माइनस है ये कभी हम पुट नहीं करते हैं. ओके, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. ओके, 0 प्लस एफ एक्स जैसे ही मैंने लिखा, अब हम 0 एक्स ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन यूज करेंगे. ओके, विल बी यूजिंग लिमिट x tends to 0 plus is representing that we are approaching 0 from the right side and the function over there is 3 in bracket x plus 1. अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 0 ही पुट करेंगे. So if you will be substituting 0 over here, you will be getting 3 in bracket 1. That means 3 you will be getting. Okay, अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड किया ये दोनों आपस में क्या सेम है? ओके, जब x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, ओके, लेफ्ट साइड से और मे बी राइट साइड से, तो y किसे अप्रोच कर रहा है? तो y, द फाइनल आउटपुट इज अप्रोचिंग द नंबर 3. दोनों केसेस में ही हमें सेम नंबर मिला है, मतलब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ओके, we'll be writing since left hand limit, that means limit x tends to 0 minus fx is equals to limit x tends to 0 plus f of x is equals to 3. That's it. Okay, or just you can write this two are equal, hence limit x tends to 0 is f of x is equals to 3. क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम है, इसीलिए जो f ऑफ x का अगर हम 0 पे लिमिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आंसर 3 है. अगर ये दोनों सेम नहीं रहता तो हम लिखते इसके बाद नॉट इक्वल्स टू लिखते और इसके बाद लिखते हेंस लिमिट डजंट एग्जिस्ट. आर यू गेटिंग इट अली एंड अलीना? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, दैट्स व्हाई वी हैव डन ऑल दिस. Previously we were not doing because we used to have only one function. So from the left side, from the right side, again and again taking the same function and putting 0 only.
doesn't make sense. That's why previously we were not doing. Okay, तो हमारा आंसर क्या हुआ? जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो f of x 3 को अप्रोच करेगा. और एक पार्ट है इस क्वेश्चन में कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो f of x किस नंबर को अप्रोच करेगा. तो ध्यान से देखो, अब इस बार 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में क्या हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है? अगर चेंज हो रहा है तो फिर से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी होगी. अगर हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम पहले जैसे जैसे पहले सॉल्व करते थे. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1, जो भी f of x रहता था लिख देते थे, x 1 पुट कर देते थे, आंसर फाइंड कर देते थे. ओके, तो x के लेफ्ट में x के 1 के आई मीन 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में क्या हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है? अली एंड अलीना, क्या हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है? ध्यान से देखो, 0 से स्मॉलर और इक्वल्स टू, लाइक व्हेन x इज स्मॉलर और इक्वल्स टू 0 है तब हमारा फंक्शन क्या है? 2x+3. तो ये तो 1 के लिए नहीं बोलेंगे, राइट? Yes, ma'am. राइट, तो बचा क्या? नेक्स्ट वाला. ओके, अब 1 लेफ्ट, जब जब हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं टू फ्रॉम द लेफ्ट और 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट, एक ही फंक्शन है हमारे पास, 3 इन ब्रैकेट x+1. तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग इट, अली एंड अलीना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर हमें लिमिट x टेंस टू 1 f of x फाइंड करना है, अगर हमें लिमिट x टेंस टू 1 f of x फाइंड करना है तो हमारा f of x एक ही है. ओके, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, एक ही हमारे पास फंक्शन है जो कि 3 इन ब्रैकेट x+1 है. यहाँ हम डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे. अगर हमारा अनडिफाइंड नहीं आता है तो ग्रेट, दैट विल बी द आंसर. एंड यस, वी आर नॉट गेटिंग अनडिफाइंड ओवर हियर, राइट? Is it clear? आ रहा है समझ में अली एंड अलीना कि कब हम Yes, लेफ्ट ma'am. हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, कब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और कब हम डायरेक्टली फंक्शन लेके डायरेक्टली फाइंड कर दे रहे हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस. गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, let's do few more questions. Have you copied this all? I have started the solution from here. Zero minus, again 0 minus. Minus is representing the left hand limit only. Okay, and that is 3. Similarly, now from here 0 plus f of x, that means 0 plus 3x plus 1, and then we are finding, again we are getting 3. Since left hand limit, right hand limit same, therefore limit x tends to 0, f of x is 3. For 1, we are just taking the next, this function 3 in bracket x+1, and we are finding the limit. Clear? Yes, ma'am. Okay, let's do the next one. Again, we are having piecewise defined function. Okay, and at 1, we have to find the limit. So we can see when x is smaller or equals to 1, then this is the function. When x is bigger than 1, then this is the function. Okay, so we'll be taking accordingly when we are approaching 1 towards the left. Okay, when we are approaching 1 towards the left, very closer, very closer, very closer, then at which value y is approaching.
and when we are approaching 1 towards the right, when the function is getting changed. Okay, then what is y? Let's check it. Is it same or different? So again, limit x tends to 1 minus, because we are thinking about, we are approaching 1 towards the left hand limit we are finding. Okay, f of x. And here accordingly we'll be choosing the function. Which function shall I take over here? Ali and Alina. Yes, which function? कौन सा फंक्शन ले यहाँ पे? अली, अलीना? अगर सपोज मैं 1 के पहले का कोई नंबर लेती हूँ, 0.9, ओके, मैं ले रही हूँ x इक्वल्स टू 0.9, ये कौन से फंक्शन में पुट कर सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस वन में या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन में? -x² -1 मैंने 0.9 लिया है। अगर ये वैल्यू x का है 0.9, ये कौन से फंक्शन में पुट किया जा सकता है अली? तो ध्यान से देखो, ये जो मैंने x इक्वल्स टू 0.9 लिया है, ये 1 से छोटा है, राइट? राइट? यस मैम। तो ऑब्वियसली हम ये वाला कंडीशन, ये फंक्शन यूज करेंगे, हाँ या ना? आर यू यस गेटिंग मैम। इट? ओके, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब ये x 1 को अप्रोच कर रहा है, कहाँ से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड के कुछ नंबर माइंड में रख के चेक कर लो, 0.5, 0.8, 0.9, ये सारे ही नंबर कौन से फंक्शन में पुट किया जा सकता है? फर्स्ट वाले में। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे। आ रहा है समझ में? जब x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, कुछ नंबर्स हमने माइंड में ले लिए हैं, और हमें तब समझ में आया, अच्छा फर्स्ट वाला फंक्शन यूज कर पा रहे हैं, देन we'll be using it। अब यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं आंसर क्या होगा। तो क्या होगा आंसर? माइनस साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज अप्रोचिंग 1 टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहां से? लेफ्ट साइड से। माइनस साइन सिर्फ उसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फटाफट -1 नहीं पुट करना है, हमें 1 ही पुट करना है। आ रहा है समझ में? अगर हम 1 सब्सटीट्यूट कर दे x के प्लेस पे, तो क्या आएगा हमारा लिमिट? अली या ना लेना? x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है x² -1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। 0। And is it possible to get 0? Yes, 0 is also an answer. We are just avoiding the undefined scenario where the denominator should not contain 0. Okay. Now let's take the right hand limit. Okay. That means we'll be writing x approaching to 1 plus. Okay. Limit x tends to 1 प्लस, ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, कहां से? राइट साइड से। 1 के राइट साइड से कोई नंबर अज्यूम कर लो, कोई भी नंबर, 1.2, 1.3, 1.4। अगर ऐसे कुछ नंबर होंगे तो ऑफ कोर्स हम सेकेंड वाला फंक्शन यूज करेंगे, राइट? अलिया ना लेना? Yes, ma'am. ओके, इसीलिए जब मैं प्लस लिख रही हूँ तो ध्यान से x greater than 1 वाला सिनेरियो यहाँ पे हम यूज करेंगे, -x² -1। अब यहाँ पे अगर 1 पुट करें x के प्लेस पे, तो हमारा क्या आंसर आएगा? x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ओनली 1। अगेन ये प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है।
अगर x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो लिमिट क्या आएगा हमारा? यस, अलियन अलीना, 0. अगेन 0। x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा हमें। चलो देखते हैं। We are not getting 0. Can you see what are we getting, Ali? -2. क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है हमें। आ रहा है समझ में? जस्ट हमने 1 पुट कर दिया। इतना इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, directly we are just substituting this one. One we have substituted in the previous function. One we are substituting over here. I am telling you that plus minus sign सिर्फ direction दिखा रहा है। क्विकली -1 या +1 नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, 1 है हमारा। क्वेश्चन में लिमिट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में x टेंस टू 1 f(x) ये पूछ रहा था। ओके, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि जब, क्योंकि हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो हमें ये दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि जब x1 को कहाँ से लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो फंक्शन ही तो चेंज हो जा रहा है, एंड जब x1 को राइट से अप्रोच करेगा तो अगेन हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। हमने दोनों ही केसेस को कंसिडर किया और हमने ये पाया कि दोनों लिमिट सेम नहीं है। Okay, we'll be writing it when we have found limit x tends to 1 from the left side f of x, that is not equals to limit x tends to 1 from the right side. Okay, hence the given limit doesn't exist. क्योंकि y किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है तो ये ऐसे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस कंक्लूजन पे आते हैं। Getting it? Yes, ma'am. Okay, we'll be doing like this. I'm giving you the next one. Do it now and tell me. Just a second. Just a moment. Okay, let's do this one. Okay, we need to discuss it. I wanted to give one question, but it's fine. Let's do it. Okay, we have to find limit
x tends to 0, f of x, okay, and this is how our function is defined. See, मॉड्यूलस फंक्शन हमें अच्छे से समझ में आता है. मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ओनली एक्स. कब? जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर हमारा x लेस देन 0 होगा तो एक माइनस x होगा. राइट? राइट अली एंड अलीना? राइट? yes or no? Yes, ma'am. Okay, so we understand very well what exactly is modulus function. Modulus function का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव आंसर जनरेट करता है. क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर रहता है 5, 6, 7 और कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर, तो वो वैसे ही दे देता है. और अगर कोई नेगेटिव नंबर इसके अंदर रहता है तो और एक नेगेटिव साइन उसके सामने पुट करके उसे पॉजिटिव बना देता है. राइट? यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स फाइन, मॉड इज देयर एंड ऑल, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें फाइंड करना है. तो हमें ये क्लियरली पता है कि x 0 को जब लेफ्ट से अप्रोच करेगा तब हमें फाइंड करना होगा कि y किसे अप्रोच कर रहा है, आई मीन एफ ऑफ x किसे अप्रोच कर रहा है. और x अगर 0 को राइट से अप्रोच करेगा तब हमें फाइंड करना होगा एफ ऑफ x किसे अप्रोच करेगा. बट अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि दोनों ही केसेस में एफ ऑफ एक्स क्या लो. तो ध्यान से सोचो, अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन को देख रहे हैं हम, ओके, अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन को हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता है, अगर x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब 0 से छोटा कोई नंबर, अगर 0 से छोटा कोई नंबर होगा तो मॉड x तो माइनस x जनरेट कर देता है. राइट? राइट? Yes, ma'am. ओके, तो मैं यहाँ पे फंक्शन वही लिखने जा रही हूँ, सेम 0 माइनस, हमारे पास क्या है, मॉड x बाई एक्स है. राइट? x इज इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है, और अगर x 0 नहीं है तो ये फंक्शन ये है. ओके, नाउ 0 से बड़ा, 0 से छोटा ऐसे डिफाइन नहीं किया है, बट क्योंकि हम मॉड्यूलस फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, ओके, तो हम खुद से कर लेंगे डिफाइन. ओके, तो हमने मॉड x बाई एक्स एज इट इज ले लिया, बट अब x को जब जैसे ही हम मॉड से निकालेंगे, हमारे माइंड में ये क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही हम ये जो x को मॉड से निकालेंगे और हमें यहाँ दिख रहा है कि हम 0 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ खुद से माइनस x लिख लेंगे. ये क्या हम समझ पा रहे हैं अली एंड अलीना? Yes, ma'am. अलीना, यू गॉट इट? अली, Yes, ma'am. आ रहा है समझ में? मैंने इस मॉड x को माइनस x क्यों ले लिया यहाँ पे? Yes, ma'am. क्यों ले लिया अली? Why we have taken? Yes. Ma'am, Why because we have taken? x is smaller than 0. Exactly, x is smaller than 0. That's why we have taken minus x. And now we will try finding the limit. Okay. So we can see x and x is getting cancelled out. Can we do so? Yeah, we will be doing so. Okay. क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो हम पहले भी करते थे. फर्स्ट डे जब हमने लिमिट डिस्कस करना शुरू किया था, तो हम क्या कर रहे थे, पहले वैल्यूज पुट करके देख रहे थे, अगर अनडिफाइन आ रहा था तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, कैंसलिंग कर रहे थे, जो भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हो रहा था सब कुछ कर रहे थे. तो यहाँ पे हम तो देख पा रहे हैं एक्स एंड एक्स कैंसल आउट हो रहा है. हाँ, अगर 0 पुट करके देखोगे तो 0 बाई 0 आ जाएगा, बट उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बारे में जैसे ही हम सोचेंगे, क्या हम देख पा रहे हैं कि एक्स एंड एक्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं? हाँ या ना? तो हमारा क्या आया, -1. अब 0 कहाँ पुट करें? ऐसे सिचुएशन में -1 विल बी द आंसर. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. अलीना, आर यू गेटिंग अलीना? Yes, ma'am. Similarly we'll be doing this one.
when x is more than just x is greater than 0. Okay, x is approaching 0 from the right side. That means greater than 0. Okay, x is greater than 0, then f of x, here we are having mod x by x. Okay, mod x by x we are having the original function I have copy pasted, but जैसे mod से निकालेंगे ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि हमारा x 0 से बड़ा है तो हमारा mod से सिर्फ x से निकल के आएगा. Are you getting it? And here also we'll be doing the cancellation, x and x gone, and we are getting limit x. See, we are getting this one, limit, just a second, limit x tends to 0 plus we are getting 1. So here in such scenario answer will be 1 only. Getting it, Ali and Alina? Clear so far? Is it clear so far? Ali, Alina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then we'll be saying that, yeah, now we are saying that limit x is approaching 0 from the left side, that is not equals to x is approaching 0 from the right side, because one of the answer was -1, another answer was +1, so of course it is not same, and when it is not same, hence limit x equals to x tends to 0 f of x, this x tends to 0 f of x doesn't exist. Getting it? आ रहा है समझ में? अली, अलीना? Yes, ma'am. The next one. अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है, लिमिट फाइंड limit x tends to 0 f of x where f of x is equals to x by mod x, this one you will be able to do. Tell me, what are you getting? Yes, here also we'll be doing the same thing, and it seems like here also we'll be getting the same thing, right? Yes, ma'am. Right? Exactly same. Okay, in previous question we were having minus x in the numerator plus x in the numerator. Here we'll be having the same in the denominator, and answer will be same. It seems like answer will be same over here also. Are you getting it, Alina? Are Yes, you ma'am. getting it? As it is, I am copy pasting the function. Now we will be careful because we understand modulus function very well. Okay, when it is 0 minus, we'll be taking minus x over here. Okay, because smaller than 0 we are talking about. Okay, and hence the answer will be -1 over here, and here the answer will be +1. Again, limit doesn't exist. Got it? Yes, ma'am. Let's do the next one. If this function we are having f of x is mod x minus 5, and we have to find the limit when x is approaching to 5. Okay. Now, is it a piecewise defined function? It doesn't look like a piecewise defined function. Is it a piecewise defined function, Ali? No, ma'am. क्या यहाँ पे हम directly x tends to 5
फाइंड कर सकते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जैसे इसके पहले क्लास तक हम कैसे करते थे, डायरेक्टली जो भी हमारा एक्स किसी भी वैल्यू को अप्रोच करता था, डायरेक्टली वो वैल्यू हम पुट करके देखते थे। अनडिफाइन आता था तो हम कुछ सिंप्लीफिकेशन, कोई अरेंजमेंट, कोई फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते थे। तो क्या यहाँ पे भी डायरेक्टली 5 पुट कर देंगे, या फिर हमें स्मॉलर देन 5, बिगर देन 5 ये सिनेरियो सोचना ही पड़ेगा? अलीना, यस, व्हाट्स योर ओपिनियन? एनी आइडिया? हमारा पिछली क्लास तक कैसे रहता था क्वेश्चन? लेट मी हेल्प यू रिकॉलिंग। पहले क्लास तक हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता था, r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, और हम r के प्लेस पे 1 पुट करके आंसर लिख देते थे। तो क्या ये वाला भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, या फिर ये जैसे अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं वैसे सॉल्व होगा? यस अली, एनी आइडिया? यस अली, No, ma'am. नो आइडिया? No, ma'am. क्या हम यहाँ पे मॉड एक्स देख पा रहे हैं? और अगर यहाँ पे मॉड Yes, एक्स है तो हम सिर्फ 5 तो नहीं ले सकते। if if you will be just substituting at the place of x 5, okay, that will be incorrect. Okay, that will be incorrect. Why? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, हाँ या ना? yes, ma'am. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को अपने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन इफ यहाँ पे इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर हमारा x, ओके, 0 से छोटा होगा तो फिर क्या लेंगे, 0 से बड़ा होगा तो फिर क्या लेंगे। ओके, if we must think about this scenario that f of x is of when f of x is mod x, how mod x we define? When x is greater or equals to 0, it is only x. When x is smaller than 0, it is minus x. But यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 5 है, तो कैसे हम सॉल्व करें? तो कोई बात नहीं, 5 है तो थोड़ा हम केयरफुल रहेंगे। ओके, लेट्स डू इट। अगर हम लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, चलो 5 को अप्रोच कर रहा है, ओके, x 5 को अप्रोच कर रहा है, ओके, 5 के लेफ्ट का कोई नंबर, कोई भी नंबर वेरी क्लोजर टू 5, ओके, वेरी क्लोजर, लाइक 4.9, 4.99, ऐसे नंबर्स लेंगे। ओके, ऐसे नंबर्स लेंगे तो मॉड के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा साइन चेंज होगा। नो, इट इज बिगर देन 0, विल बी गेटिंग ओनली x, राइट? राइट, Yes, ma'am. ओके। और दूसरे भी केस में हमारा सेम ही आएगा, x टेंस टू 5 प्लस, इफ यू विल बी टेकिंग मॉड x माइनस 5। ओके, अगर कोई नंबर हम लेंगे 5 से बिगर, 5.1, 5.2, 5.3, कोई भी नंबर, ओके, तो अगर वो मॉड के अंदर पुट करेंगे, सपोज मॉड के अंदर 5.1 पुट के, तो ये एज इट इज हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब x विल कम आउट एज इट इज, ओके, x माइनस 5। तो यहाँ पे तो फंक्शन ही चेंज नहीं कर रहे हैं। it's fine, we are not changing the function, but we'll be doing it like this, or you can do it directly also. Okay, ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे हम ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से छोटा नंबर ले या 5 से बड़ा नंबर ले, हमारा मॉड x है ओनली, ओके, उसके अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हम डालते हैं तो वो एज इट इज आ जाता है, मतलब x एज इट इज आ जाएगा। ओके, एंड हमारा लिमिट हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, दोनों ही केसेस में सेम लिमिट होगा। गेटिंग इट अली एंड अलीना?
ma'am. हमारा फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बट क्योंकि मॉड था हमने दो सिचुएशन जेनरेट करने की कोशिश की। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं दूसरा दूसरा मेथड भी दिखा देती हूँ। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। यहाँ भी सेम हमारा आंसर 0 होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन ही सेम है। ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में हमारा सेम आउटपुट सेम फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन अलग अलग नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्लास में तो डायरेक्टली करते थे ना, तो इस यहाँ पे भी या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, और लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में सेम है, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, 0। ये मेथड 1 है। मेथड 2 है कि हम डायरेक्टली पहले ही हमने हमारे माइंड में आइडेंटिफाई हमने कर लिया था कि मॉड एक्स है और हमारा लिमिट में 5 है, तो वो तो पॉजिटिव नंबर है। अब 5 के क्लोजर कोई नंबर 4.9 4.99, 5 से छोटा कोई नंबर या फिर 5 से बड़ा कोई नंबर लेके चेक करेंगे तो हमें x ही मिलेगा। ओके, सो इफ लिमिट x टेंस टू 5 f of x we want to find, we can find it directly. This M2 means method 2. Okay, limit x tends to 5 mod x minus 5, and here we'll be finding 5 minus 5 is equals to 0. That's it. So either this much you can do, or this all you can do. Both are correct, and by doing any way, the first way or the second way, you will be getting the full marks. Are you getting it? Yes, ma'am. अलीना, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि मॉड दिखा हमें तो हमने सेपरेट कर लिया पहले ही, और फिर हमें रियलाइज हुआ ये तो 5 है। 5 के क्लोजर कोई नंबर लेफ्ट से या राइट से, हमारा मॉड तो एक्स ही जेनरेट करेगा। ओके, माइनस साइन एंड ऑल तो आएगा ही नहीं। तो इट्स ओके, यू कैन डू लाइक दिस, और मे बी यू कैन डू लाइक दिस। ओके, अब से तुम लाइक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल बी सीइंग दैट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट लेके कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसे नॉर्मल फंक्शंस को भी, ओके, जो कि पीस वाइज नहीं है, वहां भी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो एक सिंगल फंक्शन है, जो कल के क्लास में, प्रीवियस डे के क्लास में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, we used to solve like this, limit x tends to 3 x plus 3। ओके, और ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, 3 पुट करके और फाइनल आंसर लिख देते थे, राइट? अब अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर दिया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ओके, एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके, एंड दोनों ही टाइम में स्टूडेंट ने सेम ही फंक्शन लिया, क्योंकि एक ही फंक्शन है, x प्लस 3 यहाँ भी, ओके, और दूसरे वाले सिनेरियो में भी 3 प्लस एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे x प्लस 3, और यहाँ 3 पुट किया तो 6 आया, यहाँ भी 3 पुट किया तो 6 आया, फिर सेम दिखाया और फिर कहा कि फाइनल आंसर 6 है। तो ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास एक फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में सोच ही नहीं सकते। वहां भी हम सोच सकते हैं, बट वहां हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं सोचते। ओके, बट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में तो मैंडेटरी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचना, क्योंकि फंक्शन ही डिफर कर जा रहा है। ओके, और ऐसे जनरल वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व किया हुआ क्लास 12 में जब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, तो तुम पाओगे कि ऐसे नॉर्मल जनरल वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल्स में या कहीं पे भी। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ भी सोच रहे हैं, बट कुछ मैटर नहीं कर रहा है, आंसर सेम ही हमेशा ही आएंगे ऐसे सिचुएशन में। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो सिंपल वाले क्वेश्चन है उसमें ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, नहीं,
सोचेंगे, हमारा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, आंसर हमेशा हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दोनों ही सिनेरियो से हमें सेम आंसर मिलेगा क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में हमने सेम फंक्शन यूज करा है. ओके, नेक्स्ट. अब ऐसे क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. दैट सपोज f of x is equals to a plus bx, x smaller than 1, 4x equals to 1, b minus ax, x greater than 1. Okay, here what the question says, just a second. And if limit x tends to 1, f of x is equals to f of 1, then find a and b. हमें यहाँ पे a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है इस कंडीशन को यूज करके. दैट लिमिट x टेंस टू 1 f of x किसके बराबर है? f of 1 के. ध्यान से देखो, f of 1 हमारा 4 है, राइट? राइट अलियन अलीना, जब x 1 है तो f of x क्या है? 4 है, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो f of 1 हमारा 4 है, बट ये जो लिमिट है लेफ्ट साइड में, ये तो हम चलो फाइंड कर लेते हैं पहले, तब जाके कंपेयर करेंगे तो मे बी a एंड b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. ओके, तो चलो पहले लिमिट फाइंड करते हैं. कैसे लिमिट फाइंड करते हैं? यहाँ पे भी हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. क्या लिमिट हमें फाइंड करना है? x टेंड्स टू 1. सो हम सोचेंगे x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द राइट, एंड देन विल बी फाइंडिंग द लिमिट. x 1 को अप्रोच कर रहा है कहां से? लेफ्ट, 1 के लेफ्ट साइड से. ओके, एंड x 1 को अप्रोच कर रहे हैं कहां से? 1 के राइट साइड से. ओके, इन दोनों ही केसेस में हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है. ओके, 1 के पहले, 1 के लेफ्ट में क्या हमारा दूसरा फंक्शन है, 1 के राइट में क्या हमारा दूसरा फंक्शन है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें अपने फंक्शन को तो हम देख पा रहे हैं, अगर x 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन a प्लस बी एक्स है. अगर x 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन a प्लस बी एक्स है, और अगर x 1 से बड़ा है, लार्जर है, तो हमारा फंक्शन b माइनस ए एक्स है. राइट? राइट अली एंड अलीना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लेफ्ट वाले सिनेरियो के लिए, 1 माइनस वाले सिनेरियो के लिए हम ये फंक्शन a प्लस बी एक्स यूज करेंगे. ओके, एंड राइट वाले के लिए x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए हम b माइनस ए एक्स ये फंक्शन यूज करेंगे. इसीलिए तो हमने सीखा था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. अब यहाँ पे जहां x है हम डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? a प्लस बी. और नेक्स्ट वाले में भी जहां हमारा 1 है, हम डायरेक्टली जहां x है वहां डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा b माइनस ए. ओके, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, बट टेक अ पॉज. यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ओके, क्या लिमिट का वैल्यू है ये हमें नहीं फाइंड करना है, हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है. ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू f ऑफ 1. कंडीशन हमें दिया हुआ है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है, और किसके इक्वल है? f ऑफ 1 के. तब a एंड b का वैल्यू फाइंड करो. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ये दोनों तो आपस में सेम होने ही चाहिए. दैट मीन्स, do we want to say a plus b is equals to b minus a? Yes, we do. Okay, and this is equals to what? This is equals to f of 1, that is 4. This is equals to f of 1, that is 4. Right? Right?
Ali and Alina. Yes, ma'am. यहाँ से क्या हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट a प्लस बी को 4 से कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, b माइनस ए को 4 से कंपेयर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, एंड b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ से हमें a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा. प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. Ma'am, B is 4. b is 4 and a is 0. a is 0. We got A, we got B. I am summarizing. In this question, we were not supposed to find whether the limit exists or not and find the value of the limit. It was not asked. It was asked that find the value of A and B. This one piecewise defined function is given. And use the condition that limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. So we realize that limit x tends to 1 f of x simply we are not able to do because towards the left of 1, towards the right of 1, the function is getting changed. So accordingly, we have found the left hand limit. Accordingly, we have found the right hand limit. And then we are saying if the limit exists, then this two must be seen. And according to the given condition, it is equals to f of 1. Okay, so we are comparing, we are getting two equations, we are solving them and we are getting a and b value. Is it clear to both of you, Ali and Alina? आ रहा है समझ में अलीना? हाँ मैम. Ali, Yes, ma'am. let's do the next one. If this question is there, if f of x is equals to mod x plus 1, x is smaller than 0, x is equals to 0 then 0, and x is bigger than 0, then mod x minus 1. Okay, for what value? Wait. For what value versus values does limit x tends to a f of x exist? For what value limit x tends to a? For what value of a at least? ओके, a का क्या वैल्यू हम ले, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है या बहुत सारे वैल्यू, सो दैट दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x exist. ऐसा कौन सा a हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर. ओके, a के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर हम सोच पा रहे हैं. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कौन सा नंबर हम सोच पा रहे हैं ए के प्लेस पे, सो दैट ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा. जीरो, जीरो वी आर हैविंग ओवर हियर. अगर हम जीरो से लेफ्ट में, जीरो के राइट में देखें तो हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है. राइट, राइट अलियन अलीना, Yes, ma'am. क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है तो ध्यान से देखो. जीरो के लेफ्ट में मॉड से क्या निकलता है, माइनस एक्स. राइट, एंड जीरो के राइट में, ओके, ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स क्या देगा, ओनली एक्स. राइट, सिंस वी आर हैविंग टू डिफरेंट फंक्शंस, सो जीरो एक्स, ए का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता. राइट, राइट, Yes, ma'am. ओके. तो फिर क्या नंबर हो सकता है, ए का वैल्यू हमने फिगर आउट किया, जीरो नहीं हो सकता. अब ये चलो सोच लेते हैं, जीरो से छोटा कोई नंबर लेंगे तो क्या वर्कआउट करेगा, या फिर जीरो से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों सेम आपस में आ जाएंगे. ओके, तो अगर हम जीरो से छोटा कोई नंबर माइनस वन लेके सोचते हैं, ओके, अगर मान लो हमें ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, ओके, एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है. ओके, और हम सोचते हैं कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होंगे या नहीं. इसका मतलब हमारे फंक्शंस चेंज नहीं होने चाहिए. अगर हम माइनस वन की बात कर रहे हैं तो माइनस वन के लेफ्ट में और माइनस वन के राइट में, मतलब एक्स जब माइनस वन से छोटा हो और एक्स जब माइनस वन से बड़ा हो, दोनों ही फंक्शन सेम होने चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा. राइट, Yes, ma'am. राइट, ओके. तो अगर माइनस वन से छोटा, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन. राइट, दिस वन, क्योंकि ये स्मॉलर देन जीरो है. राइट, Yes, ma'am. ओके. तो ये हमारा यहाँ फंक्शन माइनस वन से छोटा कुछ कोई भी एक्स लेंगे, हमारा फंक्शन ये रहेगा, यहाँ पुट कर सकते हैं. और माइनस वन से बड़ा कोई भी, very closer, bigger than minus 1 means we are not thinking about 3 4 5 6, no, very closer, very closer, very closer, minus 1.1, minus 1.2, only these numbers we are thinking. Okay, whenever I am saying the left hand limit and the right hand limit, we are thinking about very closer number, very close to minus 1. Okay, so again we'll be taking this minus x plus 1, right? Yes or no, Ali? Right, Ali? Are you there? Okay, he's not there. Alina, are you getting it? Yes, ma'am. ओके, ऐसे ही हम अगर माइनस टू लेके भी सोचेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो जीरो से छोटा वाला जो सिनेरियो है वही माइनस टू के लिए भी एप्लीकेबल होगा. ओके, एक्स जब जीरो से छोटा हो तो ये फंक्शन यूज करो. तो अब x माइनस टू के क्लोजर हो लेफ्ट से या राइट से, हम यही फंक्शन यूज करेंगे. राइट अलीना? Yes, ma'am. ओके, सिमिलरली माइनस थ्री, माइनस फोर, कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे हम यही फंक्शन यूज करेंगे. अब अगर x हम पॉजिटिव नंबर लेना शुरू कर दे, जैसे कि 1 2 3 4, तो फिर क्या होगा. तो ध्यान से सोचो अलीना, अगर हम पॉजिटिव नंबर लेना शुरू कर दे, अगर वन ले ले, तो वन के वेरी क्लोज, ओके, वेरी क्लोज, दैट मीन्स 0.999, वैसा कोई नंबर, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे. जो जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से बड़ा है, तो हमें क्या यूज करना है, एक्स माइनस वन, तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे. राइट अलीना? राइट, हाँ, ma'am. ओके. सिमिलरली अगर वन
1 के राइट साइड में कोई नंबर हम अज्यूम करें 1.1 1.2 तो फिर से हम यही फंक्शन यूज करेंगे। तो ये तो दोनों ही साइड में अगर सेम फंक्शन है तो हमारा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, राइट। फंक्शन तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। राइट अलीना। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये जो गिवन फंक्शन है ये सिर्फ 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी कोई भी नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आ रहा है समझ में अलीना? आई एम राइटिंग इट अगेन। हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा था। और हमें बताना था कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने पाया कि ये जो 0 है ना, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जा रहा है, ओके। तो ये जो 0 है यहाँ से -x निकल के आ रहा है +1, ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इस सिनेरियो के लिए। और इस सिनेरियो के लिए हम यूज कर रहे हैं x-1, ओके। क्योंकि हमारा x 0 से छोटा है तो एक दूसरा फंक्शन है, 0 से बड़ा है तो एक दूसरा फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। राइट। एक बार ट्राई भी करके हम देख सकते हैं, ओके। इफ यू विल बी टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? -x+1। चलो यूज करके देख लेते हैं। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ अगर हमने 0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? ओनली 1। और यहाँ अगर हमने 0 पुट कर दिया तो हमें मिलेगा -1, राइट अलीना? राइट। Yes, ma'am. एंड हेंस लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो x इक्वल्स टू 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब 0 से कोई छोटे नंबर, 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, क्या सारे ही नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? हाँ या ना? Yes, ma'am. यस। एंड 0 से बड़े जितने भी नंबर होंगे सारे ही नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ओके। So we will be writing, so a can be any real number except 0. Clear, Alina? Yes, ma'am. Okay. तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। Let me see if any other question is left. If the function f of x satisfies limit x tends to 1 f of x minus 2 by x square minus 1 is equals to pi, ओके। हमें क्या इवेल्युएट करना है यहाँ से? लेट मी मेक इट बिगर। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, ओके। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x फाइंड करना है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये पढ़ा था कि हमारे पास जब ऐसा लिमिट है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे डिवीजन में अगर टर्म्स है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अलीना? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 बाई
limit x tends to 1, x square minus 1. Can we write like this? Can we write like this, Alina? हाँ मैम। हाँ, अब हम इसे और भी थोड़ा ब्रेक करके देखें, क्योंकि हमें लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x फाइंड करना है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ओके, माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2, इट दिस विल बी जस्ट 2, ओके। एंड जो डेनोमिनेटर में हमारा है उसे हम दूसरी साइड में लेके जा सकते हैं, राइट? पाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? राइट अलीना, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसे हम दूसरे साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाँ या ना? ये जो हमारा डेनोमिनेटर है अलीना, इसे हम दूसरे साइड में पाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ मैम। Okay, so let's do the multiplication with pi. We'll be getting pi multiplied with what? Limit x tends to 1, x square minus 1, right? हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो लिमिट है ना उसे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद हमने जो डेनोमिनेटर है उसे हम दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x फाइंड करना है। और जैसे ही हमने 2 के साथ लिमिट x टेंस टू 1 रखा, हमारा रिजल्ट सिर्फ 2 ही आ रहा था, तो उसे हमने ऐसे लिख लिया। ये जो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है अलीना, यहाँ कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम दूसरे साइड में ले जा सकते हैं, बट पहले वहां लिमिट तो पुट कर ले। ओके, ये जो 1 है ये यहाँ पुट तो कर ले। तो जैसे ही हम दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, हमारा आंसर 0 आ जाए। 0 आ गया तो कोई बात नहीं, ओके। दिस साइड स्टिल वी आर हैविंग लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2, ओके, f ऑफ x माइनस 2। अब यहाँ से क्या हम ये कह पा रहे हैं अलीना कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा अलीना? यस, यस मैम। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? बताओ। ये 2 दूसरे साइड में जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो 0 प्लस 2 क्या होगा? 2। तो ये जो वैल्यू है ये 2 है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। समराइज करते हैं क्या किया हमने यहाँ पे। ओके, हमें दिया गया है, मैं फिर से लिखती हूँ, हमें दिया गया है कि अगर ये जो लिमिट है x टेंस टू 1, ओके, f ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ओके, इफ दिस सेटिस्फाई, दिस कंडीशन इज वैलिड, then find limit x tends to 1 f of x फाइंड करने हैं हमें। तो हमने क्या सोचा, ये जो लिमिट है इसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ पहले सेपरेटली लेते हैं, ठीक है? तो जब हमने इसे न्यूमरेटर के साथ लिया, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2, और डेनोमिनेटर के साथ भी हमने लिया लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, ओके। और फिर हमने क्या किया, ये जो डेनोमिनेटर है दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया। ऐसे हम कर ही सकते हैं, राइट? और हमारा दूसरा साइड क्या आ रहा है, 1 पुट करने के बाद ये जो 1 है अगर हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हमारा 0 आ जाए, ओके। And this side still we are having this f of x minus 2,
जब भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है हम क्या करते हैं, लिमिट को सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ओके, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने ये सीखा था कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, हम लिमिट को सेपरेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 2 लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, और लिमिट x टेंड्स टू 1 2। तो ये 2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 2 2 ही रहेगा, राइट? राइट अलीना? एंड यहाँ Yes. से हमें हमारा फाइनल आंसर 2 मिल रहा है। एनी कंफ्यूजन अलीना? No, ma'am. ओके, सो दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट। अब जितने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, खुद से बैठ के सॉल्व करना आज, और मुझे बताना कि कहाँ पे एग्जैक्टली कंफ्यूजन है, कौन से वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या जब हम दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो वहां कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर और कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? यू हैव टू टेल मी, ओके?